For a moment, you may think this shocking story belongs to an ancient and barbaric past. No, the year 1979, a small village in the arid desert district of Jaisalmer in Rajasthan. The village headman already bears the burden of two daughters. A third baby is on its way. As he left on a trip out of town, he gave strict instructions. If it is a girl this time, just finish her. The next day, the headman's wife delivered, alas, another daughter. The mother and the grandmother decided, no, they will not kill. 3 days later, the headman returned. On being given the news, he was outraged. Until she was finished and done with, he would not step into the house. The verdict had to be obeyed. Finally, as the darkness fell, the heartbroken mother took the newborn baby into the sand dunes to be buried alive in a cradle of sand rocked by the dry desert winds. These desolate dunes have seen this happen countless times. Countless baby girls. By the mid-80s, sonography arrived. Finding the sex in the womb became much easier. Sex detection became big business. Spend 500 rupees now, save 500,000 rupees 20 years later, yelled the huge billboards. Deeply entrenched son preference, the burden of dowry for daughter and big buck for the doctors led to a lucrative alliance between tradition and technology. Millions of girls went missing from the country. The Census of India 2001 National Child Sex Ratio recorded a sharp fall. In Rajasthan, the ratio was 909 girls for 1,000 boys in the age group 0 to 6. 10 districts fell below 900. Why do these figures worry us? मुझे मुझे मेरे रोंगटे खड़े होने लगेंगे कि क्या दशा होगी जो अभी जिस तरह के सेक्स के वायलेंस होने लगे हैं, जिस तरह से लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अब आप क्या सोचते हैं कि अगर उनकी संख्या कम हुई तो और नहीं बढ़ेंगे? भयंकर रूप से बढ़ने वाले हैं। बीकानेर जिले में भी, गंगानगर जिले में भी कुछ समुदायों में लोग बाग अब खरीद करके बीवी ला रहे हैं दूसरे राज्यों से। Are these societies not aware of their missing daughters? Or do they choose to simply shut their eyes? Whatever the reason, it was time for action. To stop this silent elimination of females, something had to be done, and quickly. In October 2004, IFES, with support from USAID, engaged with NGO partners in Rajasthan to mobilize communities to stop sex selection and sex-selective abortion and to establish value of the girl child. And so began the journey of community-based response in Jaipur and 5 hardest hit districts:
Sri Ganganagar, Hanumangarh, Jaisalmer, Jhunjhunu and Alwar. Partners Urmul, Swachh, Vihan and Shaw took the movement to neighborhood, villages, hamlets and cities. शुरू में हम लोग ने कोशिश की कि हम देखें कि वास्तविक स्थिति क्या है। बहुत जगह हम गए, वहाँ लोगों से मिले, बातचीत की। एक तो जानकारी नहीं थी, सेंसस को लेकर जानकारी नहीं थी। माता पिता का एक और नज़रिया था कि बेटी पैदा करते हैं तो ज़िम्मेदारी बहुत होती है, सामाजिक सुरक्षा इतनी ज़्यादा है कि अगर उसके साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे। दहेज कौन देने आएगा अगर आप कहती हैं कि बेटियां पैदा करो और फिर दहेज आप देंगी क्या। और एक दूसरी तरफ एक डिनायल था ये कि नहीं नहीं हमारे यहाँ नहीं होता, नहीं नहीं हमारी जाति में नहीं होता, नहीं हमारे ज़िले में होता नहीं, ये तो बिल्कुल होता ही नहीं है। Their journey began with a series of workshops with various sections of community, local government members, health workers, students, religious leaders. ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं कि कोई एक कम्युनिटी या एक एजुकेशन लेवल या एक सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर पे हो, हर कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम है। Orientation workshops were held in far-flung villages. The problem was understood through puppet shows, folk songs and street theatre. Children took out rallies, wrote crafties on the walls to speak out against sex selection. Urban youth of the National Service Scheme, an NGO show, came forward to organize campaigns in Jaipur. More than 50,000 pledges against sex selection were signed. Center for Advocacy and Research led the campaign of legal literacy across 8 hardest hit districts to implement the PCPNDT Act. More NGOs joined in, message that laid bare the cruelty against the girl child. हमें ऐसा लग रहा था कि फीमेल फिटिसाइड के मुद्दे को सबसे पहले कानून से जोड़ने की आवश्यकता है, तो हमने सबसे पहले उनको कानून के बारे में जानकारी प्रदान की, बताया कि कानून पे काम करके कैसे किस प्रकार से जो मेडिकल क्राइम है उसको हम रोक सकते हैं और दिन प्रतिदिन जो लिंग जांच की जाती है अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स पे, अल्ट्रासाउंड मशीन का गलत इस्तेमाल करके जो लिंग जांच की जा सकती है उसमें हम कैसे कमी ला सकते हैं। पूरे 32 ज़िलों में राजस्थान के ये शोध किया था कि जो कानून की अनुपालना है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, और जब उसकी रिपोर्ट सरकार के साथ हमने बांटी, अनुभव जो शेयर किया, उसका एक ऐसा दबाव पड़ा कि सरकार द्वारा PCPNDT सेल एक राज्य स्तर पर गठित हुआ है। नीतिगत तौर पर ये एक बहुत बड़ी पहल हुई है। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा, दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब ही तो ज़माना बदलेगा, दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। डेफिनेटली हमारा फोकस मोर कम्युनिटी पे रहा, क्योंकि हमारा ये सोचना है कि जब नीड ही नहीं रहेगी तो डॉक्टर कहाँ से सोनोग्राफी करेगा, और समाज को जागरूक करेंगे तो फिर ये चीज़ हटी जाएगी। The movement became a people's issue as community-based response groups were formed. Men, women, adolescent girls, youth, healthcare workers, teachers, students joined in. Media publicized the issue and efforts. Rajasthan University Women's Association volunteered their support. Religious and community leaders added their voices. मतलब यह है कि 8वां वचन वो जाती टाइम में उनको आशीर्वाद देते हैं हम लोग,
और आशीर्वाद देते हैं, जो उनमें ये कहते हैं कि बेटा लड़की को सम्मानित करोगे तो इज्जत होगी। तो तकरीबन हम 3-4 साल से हम प्रयासरत हैं। पिछली बार हमने जित जम्मे राजान, एक गुरबाणी का शब्द है, जिसने राजे महाराजे पैदा किए, उसको समर्पित खालसा मार्च निकाला था और 52,300 लोगों ने प्रण पत्र भरा गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में भी हम न तो कन्या भ्रूण हत्या करेंगे और न करने देंगे। Ganganagar celebrated the historic Kanya Lodi, a celebration reserved for boys until now. Slowly, millennia-old practices are challenged. Birth of girls are now celebrated. Grandmothers dance with joy. Sex detection has not stopped, but it is on the decline in these communities where the dignity of girl-child is understood. Happy two-daughter families are on the increase. Girls are being born despite the disclosure of sex during pregnancy. यहाँ पे एक देवड़ा गांव है, वहाँ पे कम से कम 108 साल के बाद एक यहाँ पे वो है कंदरक, उसने एक बच्ची रखी थी, सुमेर सिंह देवड़ा। हाँ, उसने बच्ची रखी थी और 108 साल के बाद उस गांव में बारात गई है पहली बार। अब उस गांव में आप जाके देखते हैं तो बच्ची मिलती है देखने को। तो अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है और कहीं कहीं तो हमारे प्रयासों या उनके साथी या हमारे साथियों के प्रयासों से ऐसा वातावरण बन चुका है कि वहाँ पर बेटी के जन्म पर खुशी मनाई जाती है। कि मैंने सोचा यार 2 तो लड़की पहले है, तीसरी बार हो जाए। तीसरी बार मैं जैसलमेर गई थी सोनियोग्राफी कराने के लिए। तो उसने बताया लड़की है, इसलिए हमने फटका नहीं, ये रोज़ मीटिंग लेते हैं, हमारे हर महीने आते हैं उस कन्या भ्रूण हत्या के लिए। पढ़े लिखे थी मीटिंग में जाते जरूर सरकारी काम कहीं छोड़ तो बोल जाओ एक बार मैं मीटिंग कराई बहन जी कहना थे मैं कुमार बैठ की तो अच्छो काम है तो नहीं पटकाई बढ़िया काम किया। इन्होंने ये काम अच्छा किया या नहीं किया? अच्छा किया, पहले तो गंदा किया लेकिन फिर अच्छा कर दिया। अब हमारे गाँव में है, उसको पता चला भी मेरी लड़की होने वाली, पहले उसके 2 लड़की है यहीं पे है, वो मेरे से पूछने आई कि तुम्हें चेक करवाया और तुम्हारी लड़की थी तो तू सफाई क्यों नहीं करवाई? मैं क्या क्यों करवाऊँ, मेरे को अच्छी लगती है लड़की। हाँ लड़के भी अच्छे लगते हैं लेकिन लड़की क्या लड़कों से कम थोड़ा है। मैंने सोचा क्यों नहीं अपने जीवन से ही शुरुआत की जाए। मैंने बगैर दहेज लिए शादी की। एक ही बच्ची है, वहाँ पर मैंने प्रण भी लिया था यदि दूसरी संतान चाहे लड़का होगा या लड़की होगी कोई संतान रखनी है। यदि लड़की भी हुई तो भी उसके बाद ऑपरेशन होगा और लड़का हुआ तो भी उसके बाद ऑपरेशन। इधर पड़ोस में ही गांव, हमारे खेत पड़ोस गांव है, तो वहाँ पे एक लड़की हो गई थी तो वो सभी भी ढीले नज़र आ रहे थे। मैं उनके वीडियो करने के लिए वहाँ पे गया था। मैंने कहा लड़की हुई है, आपने वीडियो कराया, डीजे लगवाया है, लेकिन आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा अभी लड़की हो जाती है तो खुशी तो नहीं आती है। तो मैंने कहा एक लड़की आगे परिवार को संभाल सकती है, इसी कारण मैंने कहा इसके जन्मदिन पर थाली बजाओ। तो उन्होंने थाली भी बजाई थी, उन्होंने खूब नाचा, उन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया कि वास्तव में बच्चा कुछ कह रहा है। जैसे यहाँ पे 250 लड़के थे और 220 एक लड़कियाँ थी, और अब हमने जो सर्वे किया डोर टू डोर उसमें सिर्फ 2 का डिफरेंस आया, माइनस में सिर्फ 2 लड़कियाँ गई हैं। नहीं, टाइम तो इसमें लगेगा ही, टाइम तो 5-10 साल का इसमें और लगेगा इसमें, पर अब 90% ये मतलब बिल्कुल कंट्रोल में है। तो हमने क्या है कि सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को, पंचायत समिति के सदस्यों को, डायरेक्टरों को, सभी को निर्देश दिया भी आप जितने भी आपके प्राइवेट क्लिनिक है कृपया आप उसको जाकर के नोटिस दें कि भी आपके यहाँ पे किसी प्रकार की कन्या भ्रूण हत्या की गई तो हमारी सारी पंचायत समिति जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपका हम खिलाफ करेंगे और आपके ऊपर कानूनी हम कार्रवाई कराने के लिए बाध्य हूँ। कन्या के जन्म पे बधाई पत्र भी देना शुरू किया है और उसका उद्देश्य यही है कि ठीक है ये एक छोटा सा कागज़ है लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा मायने है उस परिवार के लिए। अगर जब हम एक बधाई पत्र देते हैं तो उसको लगेगा कि हाँ कितना मेरी बेटी आई है तो कितना सम्मान हुआ है। इन्हें
टीचर बनाएंगे पढ़ा लिखा कर। The challenges of epic proportion daunting, but change is perceptible. A movement has begun. सामुदायिक स्तर पर जब मैं आयोजन देखती हूँ जो कि कन्या भ्रूण हत्या को समर्पित होते हैं या कन्या भ्रूण हत्या के मुद्दे को उठाते हैं और उसके विरोध खुलकर सामाजिक तौर पर एक सामाजिक मंच पर जब आवाज़ उठती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। एक मुझे अच्छी तरह से याद, एक दादी थी तो उन्होंने झूम करके मुझे गोदी में उठा लिया और उन्होंने ये कहा कि तुझे सलाम है जो इस विषय पे काम कर रही है। उनके जो पति थे तो उन्होंने झूम करके मेरे को गले में से लिपटा लिया और उन्होंने कहा कि बहुत जिस मिशन के लिए तुम निकली हो ये मिशन तुम्हारा 100% कामयाब होगा। और वो कह रहे थे कि मैं 100% बोलने के लिए ना 10 दिन तक प्रैक्टिस करता रहा कि 100% कैसे बोला जाता है। नहीं, मंजिल अभी मिली नहीं है, अभी बहुत दूर तक हमें चलना है और लड़कियों की संख्या लड़कों की अनुपात में बराबर करने की बात हम अभी तक हमारे मंजिल में, लेकिन हाँ उस मंजिल का एक सिरा मिल गया है। उस मंजिल तक जाने के लिए मुझे एक छोर मिल गया है और मुझे मालूम है कि इस रास्ते जाऊंगी तो मंजिल मुझे निश्चित रूप से मिलेगी। This journey, this intervention is a response to the voice of the girl child. For her right to be born, to live a life of dignity. Communities have begun to hear this voice. Will you not allow my unborn sister's voice to reach those homes, those streets, those courtyards where sound of laughter of daughter has not been heard?